A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. This lecture is going to be more and more interesting. Why it is interesting? Because in this lecture I am going to take each and every basic concept, rules related to the trigonometric function. Most of the students always confused and always said that trigonometric function is toughest topic in the maths, throughout the maths. But according to me, trigonometry is the simplest topic throughout the maths. There is no need to revise if you do more and more practice. So this topic basically requires your practice. If you do that, this topic becomes very easy. And now, how it is important this video? Because in this lecture I am going to take some basic rules, and these rules are the whole rules. It means you have to learn just basic rules. After that you will be able to do that the question based on the trigonometric function. So what I am going to take first is table. How you can construct a trigonometric table. This is our first topic that we have to discuss. Second topic is what? Degree and radian. You know, degree and radian is the two units to represent the angle. Third one is what? We have to find out the values at any angle. It means whenever you given a value and you have to find out the function at particular value, you can find out whatever the values, you can find out. It's very easy. Now fourth is what? Quadrant rules. Quadrant rules means that rules help whenever we want to interchange, or you can to convert function into different function. Like if you want to change sine function into cos function, you can do that, but there is some rules. So in this lecture I am going to take these four topics, and this becomes the base for the 11th class as well as 12th class. And if you are reading or studying in class 10th, then you have to read just topic 1, trigonometric table, because second, third and fourth will comes in your class 11th as well as in 12th. So please make a note. I am going to start what is trigonometric table and how we can construct it. Please make a note. Now I am going to construct a trigonometric table. जब आप trigonometric table को कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको कुछ लर्न करना पड़ता है. अब वो लर्न करने का एक वे होता है कि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को लर्न करते हो तो उसको लर्न मत करिए, रट्टा मत लगाइए, उसको एक लॉजिकली अंडरस्टैंड करिए. यदि आप लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, वेरी इजी बन जाती है. कैसे बनती है, मैं कुछ लॉजिक बनाऊंगा, कुछ रिलेट करूंगा, आप उसी की टर्म्स में समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक. जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो आपके माइंड में सिर्फ दो ही फंक्शन आने चाहिए, साइन कोस. जब भी मैं कहूंगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, आप कहोगे साइन एंड कोस, बस. अब साइन कोस से ही आप क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होती है. तो पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है, जब भी मैं कहूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रीड करनी है, आपके माइंड में आ जाएगा यस सर, यस, आपको क्या रीड करना है, साइन एंड कोस रीड करना है. दैट्स इट, इट्स वेरी इजी. तो अब मैं लिखने जा रहा हूं साइन. सबसे पहले साइन आता है क्योंकि बोलता कहां से, कैसे हो, साइन कोस. इट मीन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, साइन से. अब मैंने यहां पे लिखा साइन, जहां लिख रहा हूं मैं कोस. अब नाउ व्हाट इज SIN एंड व्हाट इज COS. यदि मैं SIN की बात करता हूं या COS की बात करता हूं तो ये जस्ट क्या है, सिंपल एक इंग्लिश के वर्ड है. इसको साइन बोल दो, इसको कोस बोल दो, बट ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं फंक्शंस की बात करता हूं, जनरल सेंस की बात करता हूं, फंक्शन, मैं कहता हूं फंक्शन. आप कहोगे फंक्शन किसका, आपको डिफाइन करना पड़ेगा. फंक्शन जो है ये मैन इसका है. मैं कहूंगा फिर फंक्शन, आप कहोगे किसका फंक्शन है, कहोगे रिंग सेरेमनी. इट मीन्स आप जब फंक्शंस की बात करते हो, जैसे मैं फंक्शन की बात करता हूं
तो फंक्शन के साथ मुझे डिफाइन करना होता है कि फंक्शन किसका है। फॉर एग्जांपल मैं बर्थडे पार्टी के लिए फंक्शन की बात करता हूं, तो आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है वो किसका है, बर्थडे पार्टी का है। यदि मैं फंक्शन की बात करता हूं मैरिज, तो आप कहोगे कि फंक्शन किस चीज का है, मैरिज का फंक्शन है। इसका मतलब जब आप फंक्शंस की बात करते हो तो आपको उसको डिफाइन करना होता है कि भाई ये फंक्शन है किसका, क्या वो फंक्शन मैरिज का है, क्या वो फंक्शन बर्थडे पार्टी का है, या फंक्शन किसी और चीज का है, लेकिन डिफाइन करना होगा। सेम टू सेम यहाँ पे मैं जब बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने लिखा साइन, तो ये साइन है, लेकिन ये फंक्शन किसका है आपको डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल करता हूं साइन एक्स, अब ये कहता है कि ये साइन फंक्शन है किसका, एक्स का। तो अब ये मेरा पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, साइन फंक्शन। तो कभी भी आप sin लिखते हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं काउंट होता, वो सिंपल आपका एक इंग्लिश वर्ड काउंट होगा। बट जब आप साइन के साथ x लिख देते हो तो वो क्या काउंट हो गया, फंक्शन, वो बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कभी भी याद रखिए sin लिखोगे तो फंक्शन डिफाइन करना होगा, तब जाके वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा, अदरवाइज वो सिंपल क्या रहेगा, एक इंग्लिश वर्ड रहेगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप x लो, आप कोई और भी टर्म ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं साइन y, इसका मतलब ये साइन फंक्शन है किसका, y का। और ले लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं साइन थीटा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, थीटा। तो अब ये क्या है, ये साइन फंक्शन है किसका, थीटा का। इस टाइप से आपको क्या समझना है कि जब भी फंक्शन लिखोगे तो उसको डिफाइन करना होगा ये किसका फंक्शन है। सिमिलरली यदि मैं कोस को डिफाइन करना चाहता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं कोस एक्स, या लिख सकता हूं मैं इसको कोस वाई, या इसको ये लिख सकता हूं कोस जेड, या इसको ये लिख सकता हूं कोस थीटा। लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्या x का है, y का है, या z का है, या थीटा का है, किसका है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते कैसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने सीखा कि ये साइन फंक्शन कोस फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो अपने माइंड में याद रखिए कि ये साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये उनके क्या होते हैं कि कौन से फंक्शन है, और इसको सिंपली सेंस में हम कहते हैं एक एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, उनका एंगल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एंगल, आपको पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, कुछ भी एंगल हो सकता है। जैसे मैं यही बात करता हूँ साइन 30, इसका मतलब ये साइन फंक्शन है और ये किस पे फंक्शन डिफाइन करना चाहता है, 30 डिग्री पर। तो ये 30 क्या है, आपका एंगल है। और यदि आप 10th क्लास में हैं तो यहाँ पे हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही फॉर्मेट यूज करना है आपको 10th लेवल के अकॉर्डिंग, वो है डिग्री। और डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एक छोटा सा सर्कल लगा देते हो, वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री। तो अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया साइन 30 डिग्री। इसका मतलब आपको साइन फंक्शन कैलकुलेट करना है एट 30 डिग्री पर। ऐसे आप यहाँ एंगल को कोई भी रख सकते हो, पर आपको उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इट्स वेरी वेरी इजी। अब समझिएगा जरूरी नहीं है आपकी 30 डिग्री हो, आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 31 डिग्री हो सकती है, 32 डिग्री हो सकती है, 90 to 100, 500, 5000, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू 10th लेवल आपको उन सब की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, आपको जस्ट ओनली बेसिक 5 ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम 10th लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर हम 11th लेवल के अकॉर्डिंग। तो जब भी आप 10th लेवल में यदि आप रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको इन एंगल पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। डिफरेंट एंगल्स पे आपको इस लेवल पे फाइंड आउट नहीं करनी। फॉर 11th एंड 12th उन्हें डिफरेंट एंगल पे भी फाइंड आउट करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। सो आपको फाइंड आउट करने एट ओनली दीज एंगल। सो आप लर्न कर लीजिए इसको, 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। आप उन सब एंगल पे साइन फंक्शन या कोस फंक्शन, इनकी वैल्यूज कौन कौन सी होती है।
उसे हमें समझना है। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। आप समझिए, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन सीखा। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी जैसे आपने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम बात करते हैं तो आपके माइंड में दो ही चीज आती है, साइन कोस। तो आपने दो फंक्शंस रीड कर लिए। फर्स्ट फंक्शन कौन सा रीड करा आपने? साइन। अब मैं यहाँ पे किसी चीज का फंक्शन लेट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन बन गया? साइन थीटा। तो आपको समझ गए थीटा क्या है? आपका एंगल है और साइन आपका फंक्शन है, तो साइन थीटा। सेकेंड फंक्शन इज व्हाट? कोस थीटा। आप समझिएगा कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या है। साइन आपका बेसिक फंक्शन है और साइन और कोस, कोस कुछ नया फंक्शन नहीं है, सिर्फ साइन का ही एक वर्जन है। आप कह सकते हो कि साइन थीटा को यदि हम 90 डिग्री पीछे शिफ्ट कर देते हैं तो ये फंक्शन जो है ये आपका कोस फंक्शन बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि आप 10th लेवल में हो तो आपने बेसिक वेवफॉर्म रीड करी हुई है अकॉर्डिंग टू 10th लेवल। ट्रांसवर्स वेव्स आप रीड करते हो। ट्रांसवर्स वेव्स होती कैसी है आपको ये दिखाई देती है। इस टाइप की वेवफॉर्म को आप क्या कहते हो? आप ट्रांसवर्स वेव कहते हो। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स ही है, लेकिन इसका यदि मैथमेटिक्स की टर्म्स में कहते हैं तो इस वेव को हम कहते हैं साइनूसॉइडल वेवफॉर्म। क्या कहते हैं इसको हम? साइनूसॉइडल वेवफॉर्म। कि ये साइन एंगल की वेवफॉर्म में वैरी करती है। क्या मतलब है कि साइन एंगल की वेवफॉर्म में है कि जब आप बात करते हो 0 डिग्री पे, यदि मैं यहाँ पे एंगल थीटा डिग्री पुट करता हूँ, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यहाँ पे मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, तो यदि आप उसकी वैल्यू को थीटा को पुट करोगे तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। तो जो ये वैल्यू होती है ये 0 डिग्री पर होती है। यदि आप इस वैल्यू की बात करते हैं, ये 90 डिग्री पर वैल्यू होती है। यदि हम इस डिग्री की बात करते हैं तो ये 180 डिग्री पर वैल्यू होती है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 270 डिग्री पर होती है। जब इसकी बात करते हैं तो ये कितने डिग्री पर होती है? 360 डिग्री पर होती है। तो 10th लेवल तक आपको इतने ग्रेटर एंगल पे नहीं जाना, आपको सिर्फ कहां तक जाना था? 0 से 90 डिग्री तक। सिर्फ क्या है ना, 0 से 90। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि आपको एक बार स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको एक चीज लर्निंग बहुत ही आसान लगेगी। कैसे लगेगी? अब देखिए, ये साइन फंक्शन है। यदि हम कोस फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि कोस फंक्शन कोई नया फंक्शन नहीं है। साइन फंक्शन को ही हम 90 डिग्री थोड़ा पीछे मूव कर देते हैं, बैक मूव कर दीजिए, तो उससे जो फंक्शन बन जाता है वो फंक्शन क्या बन जाता है? कोस फंक्शन। कैसे? ये 90 डिग्री है, इस वेव फॉर्म को 90 डिग्री पीछे मूव कर दीजिए तो आपको ये वेव फॉर्म ऐसे दिखाई देगी। इस टाइप से। मैं थोड़ा इसको और डार्क कर देता हूँ, इसको पॉइंट्स में आपको दिखाई देगा ये। तो इनसे फर्क क्या दिखाई दिया आपको कि जब 90 डिग्री थोड़ा पीछे बैक करते हो तो साइन से क्या बन जाता है? कोस फंक्शन ही बन जाता है। तो कोस की यदि वेवफॉर्म की बात करते हैं, मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ कोस को, तो कोस की वेवफॉर्म कैसी होती है? इस टाइप से होती है। तो ये वेवफॉर्म है तो कैसी? देखो, साइन की वेवफॉर्म में ही है, बस
क्या डिफरेंस है? थोड़ा शिफ्टिंग का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने क्या करा? शिफ्ट करा। इसलिए मैं यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्रीज की टेबल लिखूंगा तो टेबल करने के लिए शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब बैक, तो मैं यहाँ पे बैक करूंगा उसको, तो साइन की जो वैल्यूज आएगी वही वैल्यूज कोस की होती है। सिर्फ फर्क क्या होता है? शिफ्ट करना है, पीछे शिफ्ट करना है। इसका मतलब हम स्टार्टिंग से ना करके पीछे से भी शिफ्ट कर देंगे साइन फंक्शन को, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? कोस फंक्शन में। इसका मतलब साइन थीटा की टेबल और कोस थीटा की टेबल सेम है, जस्ट शिफ्ट का डिफरेंस है, ओनली शिफ्टिंग का डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको बेटर वे से समझाएगा। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन दिस। दिस इज फर्स्ट साइन फंक्शन, सेकेंड इज कोस फंक्शन। अब नया फंक्शन बनता है। यदि मैं इन दोनों फंक्शन को डिवाइड कर देता हूँ, मतलब साइन फंक्शन ऊपर रखता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ कोस फंक्शन से, तो मुझे एक नया फंक्शन और मिल जाता है। उस फंक्शन को नाम क्या देते हैं? टेंजेंट फंक्शन। क्या बनता है वो? टेंजेंट। टेंजेंट को हम लिखते क्या है? शॉर्ट फॉर्म में TAN। बोलते कैसे? टेंजेंट। टेंजेंट। सो टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट फंक्शन किससे बना है? नया फंक्शन नहीं है, साइन थीटा को और कोस थीटा को डिवाइड करने से बना है। तो मैं टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं यहां पर? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ये चीज समझाई आपको कि टेंजेंट थीटा कुछ और नहीं है। मैंने इन दोनों फंक्शन को जब डिवाइड करता हूं तो मुझे इनसे सोल्व होकर एक नया फंक्शन मिल जाता है, और इस फंक्शन का नाम क्या है? टेंजेंट फंक्शन। तो यदि आप इस टाइप से समझते हो तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रूल पता चल गया। क्या रूल हो गया? कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला बन गया। मैंने तो सिंपल एक जस्ट रूल बताया आपको कि कैसे निकाला, लेकिन आपके लिए क्या बन गया? ये एक फॉर्मूला बन गया। आप बताइए, है ये इजी नहीं? इट्स वेरी इजी। तो आपके तीन फंक्शंस हो गए। अब हम इसकी बात करते हैं फोर्थ फंक्शन की। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, फोर्थ फंक्शन। अब फोर्थ फंक्शन कौन सा है? क्योंकि फंक्शन तो मैं एक ही से लेके चल रहा हूं। अब देखिए, ये साइन फंक्शन है। यदि मैं इसी को रेसिप्रोकल कर देता हूं, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मेरे पास 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/2। इसी टाइप से यदि मैं साइन वेव फॉर्म को रेसिप्रोकल कर देता हूं, साइन फंक्शन को क्या करता हूं? रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो उससे मेरा एक नया फंक्शन बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? कोसेकेंट फंक्शन। अगेन लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? साइन फंक्शन को प्लीज मैं करूं, तो हम किस पे थे? साइन फंक्शन पे थे। अब बताया मैंने कि साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। आपको जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो मैं साइन का रेसिप्रोकल करता हूं। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/sin हो जाएगा। उल्टा कर दिया, तो इसी को एक नाम दे दिया मैंने। कौन सा नाम दे दिया? कोसिकेंट फंक्शन। और लिखते कैसे है उसको? उसको लिखते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट। और मैं थीटा का ले रहा हूं हर एक जगह, तो यहाँ क्या लिखूंगा? कोसिकेंट। तो इससे मुझे एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या नया फॉर्मूला बन गया? कि कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 में साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन गया? एक नया रूल बन गया। तो आप इस टाइप से अब देखोगे तो आपको नए नए ट्रिग्नोमेट्री रूल बनते जाएंगे। लेकिन इट्स वेरी इजी कि आपको करना क्या था? बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी थी। उनको किस नाम से बुलाते हैं वो आपको समझना है, तो काफी इजी हो गया। ऐसे यदि मैं कोस फंक्शन को भी उल्टा कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो उससे भी आपको एक नया फंक्शन मिल जाता है, और उस फंक्शन का नाम होता है सेकेंड फंक्शन। कर क्या रहा हूं मैं? अब कोस को रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो ये क्या बन गया? 1/cos थीटा। तो इसका नाम क्या दे दिया मैंने? सेकेंड फंक्शन। बोलते कैसे? सेकेंड, SECENT सेकेंड, और लिखते कैसे? सेकेंड, SEC, सेकेंड थीटा। अब देखिए, एक फॉर्मूला और भी बन गया। तो हमने कोई लर्न नहीं करा, याद नहीं करा, अपने आप ही नए नए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। अब फिर देखिए, जैसे हमने अब साइन का भाई रेसिप्रोकल करा, कोस का रेसिप्रोकल करा, अब क्वेश्चन आता है कि टेंजेंट का भी रेसिप्रोकल कर दे तो भी हमें शायद एक नया फंक्शन मिलेगा। यस, आपको आंसर इज करेक्ट। आप टेंजेंट को भी रेसिप्रोकल कर दो, 1 में
टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल का नाम हो जाता है कोट थीटा। टेंजेंट थीटा का फंक्शन का रेसिप्रोकल का नाम क्या हो गया? कोट थीटा। वेरी इजी। अब ध्यान से देखिए कि कोट थीटा टेंजेंट का फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, और टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट तो साइन बाई कोस होता है। तो यदि मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 3/2, आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो इसी टाइप से इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या होगा? कोस तो ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। मैंने क्या करा? रेसिप्रोकल करा। और आपको पता है कि आप रेसिप्रोकल करते हो किसका? टेंजेंट का। तो आपको क्या मिलता है? कोट। इसका मतलब ये क्या बन गया? कोट थीटा। क्या मतलब? इसका मतलब तो ये हो गया, एक फॉर्मूला और भी बन गया। आंसर इज करेक्ट। तो फॉर्मूले कुछ और नहीं होते, हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अंडरस्टैंडिंग को हम क्या नाम दे देते हैं? फॉर्मूले दे देते हैं। तो फॉर्मूले कुछ नए नहीं है। तो आपको समझ आया? तो हमने अभी कई सारे फॉर्मूले भी रीड कर लिए। हमने ये रीड करा कि हमारे पास कितने फंक्शन हैं, काउंट करिए। साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन और उनके रेसिप्रोकल, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट। तो टोटल कितने फंक्शन हो गए? 6। ये जब फॉर्मूलेस की बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूलेस भी बन गए हमारे। कौन कौन से फॉर्मूलेस बन गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ फंक्शन भी सीख लिए और 5 ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी सीख लिए। कितना इजी है? सो प्लीज मेक अ नोट। है इजी? आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। आपने कुछ रूल्स भी रीड कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रीड कर लिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कितनी आसान होती है। फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है आपका? फर्स्ट फंक्शन साइन। तो आपको फोकस किस पे करना है? जस्ट साइन। तो कोई वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं। आप देखिए मैं लिख रहा हूं, आपको क्या समझना है? साइन फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि साइन जब भी कोई फंक्शन आएगा आपको कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस डिग्री पर? ओनली 5 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, कोई 6 वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी। पहली वैल्यू क्या थी? 0 डिग्री। सेकेंड वैल्यू इज 30 डिग्री। थर्ड वैल्यू इज व्हाट? 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन इज 90 डिग्री। तो आपको 5 ही एंगल कैलकुलेट करने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब ये वैल्यू कौन सी होगी उसको भी कुछ नहीं याद करना। सिंपल सा स्टेप क्या करिए, अपने होल नंबर लिखना स्टार्ट करिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो मैं अब नंबर लिख रहा हूं। पहला नंबर क्या है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 नंबर है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है। तो सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4, 4, 4, 4, 4 डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करा है तो सोल्व भी करना पड़ेगा। करिए सोल्व इसको। 0 को किसी से भी डिवाइड करते आपको आंसर क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। 1/4 तो कटेंगे नहीं, तो 1/4 ही आएगा। 2/4 कट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब आपको आंसर कितना मिल गया? 1/2 मिल गया। 3/4 भी नहीं कट सकते तो हम 3/4 भी रख देंगे। 4/4 कट के क्या मिल गया आपको? 1 मिल गया। यहां तक तो बहुत इजी था। अब आपको करना क्या है, एक स्टेप और भी याद रखना है। क्या करिए, सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या? सभी के अंदर क्या कर दो भाई, डिवाइड कर रहा है तो एक स्क्वायर रूट भी कर देते हैं। करिए स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट कर दो। आपने सभी का स्क्वायर रूट कर दिया। और स्क्वायर रूट सोल्व करना तो आता है आपको। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं,
तो स्क्वायर रूट में ही आएगा। 3 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता, तो वो रूट में ही आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। तो क्या मिल गया आपको? यू गॉट योर ट्रिग्नोमेट्री टेबल। फर्स्ट टेबल आपकी मिल गई। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। दिस इज व्हाट। यदि 0 डिग्री की बात करता हूं तो साइन 0 0 होता है। साइन 30 की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की बात करते हैं तो 1/√2 होती है। और 60 की बात करते हैं तो √3/2। और 90 की बात करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसका मतलब जो हमने ये स्टेप्स करे, ये सब स्टेप थे आपको किस लिए? एक बार बनाने के लिए। अब कितना टाइम लगेगा? हार्डली आपको 1 मिनट लगेगी। क्या करना था? सबसे पहले स्टेप आपको होल नंबर लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट नंबर क्या था? 4। सबको 4 से डिवाइड कर दिया। रिजल्ट जो आया कट करने के बाद उसका स्क्वायर रूट कर दो, और स्क्वायर रूट करते ही आपको आंसर मिल गया। तो है ना इजी स्टेप। तो बस आपने ये स्टेप तक सीखे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं। स्टेप सीख गए आप। अब स्टेप सीखने से ही हम 1 मिनट में अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना देंगे। इट्स वेरी इजी। आप सिर्फ नोट क्या करिए कि ये वैल्यूज किस पे आती है? ये वैल्यूज आपको यही वैल्यू को यूज करते हुए हमें नेक्स्ट फंक्शन की भी वैल्यू लिखनी है। इट्स वेरी वेरी इजी। सो प्लीज मेक अ नोट। हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने नोट कर लिया। आपने नोट करा साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी थी? 0। साइन 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू? 1/2। 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे इज 1। इट्स वेरी सिंपल। अब आपको क्या बनाने हैं? आपके नए फंक्शंस बनाने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या था? साइन। और साइन को शिफ्ट कर दो, पीछे ले आओ। क्या बच जाता था? कोस। तो कुछ नहीं करना। दूसरा फंक्शन क्या बन गया आपका? कोस थीटा। तो क्या करना था? शिफ्ट करना, पीछे करना था। तो पीछे शिफ्ट करो। पहला वैल्यू क्या है? 1 है। 1 लिखिए। दूसरी वैल्यू कौन सी है? √3/2 लिखिए। √3 के बाद कौन सी वैल्यू है? 1/√2 है। 1/√2 के बाद 1/2 है। 1/2 के बाद क्या है? 0 है। हो गया सिंपल। कहा था ना हमने इसकी साइन क्या है? कोस। सिर्फ कोस क्या होता है? इसका शिफ्टेड होता है, पीछे से शिफ्ट कर दो। तो हमने पीछे से शिफ्ट कर दिया। तो क्या बन गए? कोस की वैल्यू बन गई। इट्स इजी। थर्ड स्टेप, थर्ड फंक्शन क्या था? टेंजेंट। और टेंजेंट कैसे बनता था? भाई साइन को ऊपर ले लो, कोस को नीचे ले लो, डिवाइड कर दो। तो साइन कोस को डिवाइड करने से टेंजेंट थीटा बनता था। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। इससे फॉर्मूला बन गया था। करिए सेम स्टेप। इट्स वेरी इजी। थर्ड फंक्शन इज व्हाट? टेंजेंट थीटा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं। टेंजेंट थीटा इज व्हाट? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब आपको डिवाइड करना आता है। इट्स वेरी इजी। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर मिलेगा? 0। सो व्हाट? टेंजेंट 0 इज 0। आप डिवाइड करिए। जब आपको डिवाइड करते हो तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कटता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। कट करिए। 2 किससे कट गया? 2 से। और 1 ऊपर रह गया। और √3 कहाँ रह गया? डिवाइड में। यदि आपको ऐसे में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। आपके पास क्या है? 1/2 डिवाइड में क्या है? √3/2। जब आप इसको सोल्व करते हो तो कैसे सोल्व करोगे? 1/2 और दिस टर्म विल बिकम्स रेसिप्रोकल। सो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे। 2 से 2 कैंसिल आउट। व्हाट यू गेट? 1/√3। ऐसे ही करते हैं। तो अब बहुत इजी मेथड है। कैसे? कि आपकी डिवाइड डिवाइड वाले टर्म को कट कर दो। ऊपर क्या रह गया? 1 और नीचे क्या रह गया? √3। तो 1/√3 मिल गया आपको। ये इजी मेथड है। सो प्लीज मेक अ नोट और डिवाइड ऑल द टर्म और चेक द आंसर व्हाट यू विल गॉट। आर यू डू दैट और नॉट? नो। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल सेम। 1 से 1 कैंसिल आउट, √2 से √2। सो व्हाट विल गेट? ऊपर भी 1 रह गया, पीछे भी क्या रह गया? 1। सो 1/2 to 1/2 कैंसिल आउट। सो वी गेट व्हाट? 1। सेम हियर। 2 कैंसिल आउट विथ 2।
ऊपर क्या मिला आपको √3, नीचे क्या मिला 1। √3/1 क्या होता है, √3/1 इज व्हाट, ओनली √3 ही रहेगा। सेम हियर 1 को 0 से डिवाइड करते हो, क्या आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से रिजल्ट कभी मिलता है, नहीं मिलता। तो आंसर क्या मिलता है आपको, नॉट डिफाइंड। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को कई बार हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन्फिनिटी सिंबल से। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट, 3 फंक्शन मिल गए। आप क्या करते थे, तीनों का ही रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या देता था आपको, कोसेकेंट फंक्शन। सो नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, कोसेकेंट फंक्शन। सो कोसेकेंट इज व्हाट, 1 में साइन थीटा। डू रेसिप्रोकल, इट्स वेरी इजी। 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या मतलब है, 1/0। अगेन 0 आ गया, 0 से डिवाइड करने से आंसर क्या मिलता है आपको हमेशा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब पहली वैल्यू क्या मिल गई आपको, ND। ND मतलब नॉट डिफाइंड। अब डिवाइड करिए, 1/2 का रेसिप्रोकल, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, 2/1 क्या 2। 1/√2, √2 ऊपर by 1, √2/1 अगेन √2। √3/2, 2 ऊपर गया, √3 नीचे, आपको क्या मिला 2/√3। नाउ 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। नंबर्स होते हैं ना जिनका रेसिप्रोकल खुद एक नंबर होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है 1, क्योंकि 1/1 इज 1। सो यू गेट 1। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, सेकंड फंक्शन क्या है, कोस। कोस का रेसिप्रोकल कर दो, क्या नाम बनता है आपका, सेकंड फंक्शन। सो प्लीज मेक अ नोट, नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज व्हाट, सिंपली कोस थीटा का रेसिप्रोकल। डू दैट। नाउ 1 का रेसिप्रोकल इज व्हाट, 1, तो 1 लिखिए। √3/2 का रेसिप्रोकल, 2 ऊपर गया और √3 नीचे, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल, √2 ऊपर गया 1 नीचे, तो √2 ही आ गया। 1/2 का रेसिप्रोकल, 2 ऊपर गया 1 नीचे, 2/1 इज व्हाट 2। नाउ 0 का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको, 1/0, और 1/0 तो अगेन क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सो आपको क्या मिल गया यहाँ पे फिर से ND, नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, टेंजेंट का भी उल्टा करिए, एंड टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। सो डू दैट, cot थीटा इज व्हाट, 1/टेंजेंट थीटा। करिए, टेंजेंट थीटा ये 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या बन गया, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल, √3 ऊपर गया 1 नीचे, √3/1 √3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। √3 इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1, तो 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे, तो क्या बन गया 1/√3। आप यहां पे आ जाइए, नॉट डिफाइंड। यदि आप किसी भी नंबर को नॉट डिफाइंड से करते हो तो क्या मिलता है, 0। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड, यदि किसी नंबर को नॉट डिफाइंड से डिवाइड करोगे तो 0। इट्स वेरी सिंपल। 0 और नॉट डिफाइंड क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। सो व्हाट यू गेट 0. So this is what? This is a trigonometric table. So please make a note. It's very simple. I hope आपको समझ आया होगा कि trigonometric table आप इसको बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मिनट लगा सकते हो, और बिल्कुल विदाउट लर्न, विदाउट रटा, everyone can make the trigonometric table in an easiest way. और साथ साथ आपने क्या सीख लिया, फंक्शन भी सीख लिए, कुछ 5 फॉर्मूले भी सीख लिए। तो 5 फॉर्मूले भी आ गए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आ गई। दैट्स गुड। सो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज यू मच कैन डू। तो वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।
take up with the next lecture to continue on the trigonometry. So please don't forget to subscribe, like and share. Please now make a note.